Hello students, hope you're doing well. Now we studying about Ohm's law. I told you about the that we study about Ohm's law, and for studying this topic we have to know about electricity, current and potential difference, which we discussed in our previous videos. Still I repeated these topics in a small time, that what is current. करंट का मैंने बताया था आपको कि द नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग इन अ पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज करंट. SI unit is ampere and represented by current represented by I, capital I, and their unit ampere is represented A. And the device which used to measure current is ammeter, which combines in series combination. ठीक है. एंड सेकेंड इज पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेंशन कर रहे थे. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन टू फ्लो बाय द चार्जेस. मतलब V is equals to W upon Q. Their unit is volt, which is represented by V, and potential difference is also represented by capital V. For the device which used to measure the potential difference is voltmeter, and it's combined in parallel combination. These combinations we will discuss in the next videos. Right now these two topics we will discuss in previous videos, that is current and potential difference. Now what is the relationship between current and potential difference? If we talk about circuit, then we need battery for produce the potential difference, and then after flowing some electrons from the circuit and producing current from the circuit, then ammeter helps to know that ki how much current flowing in the circuit, and voltmeter helps to knows that how much potential difference is produces by the battery in the circuit. So for that, sometimes we need, for understanding this Ohm's law, we need to do a small experiment. And when a scientist, the scientist name is German scientist Georg Siemens Ohm, for finding out the relationship between current and potential difference, he do a small experiment, and in this experiment he found that when we increase potential difference, then the current is automatically increase, and when we decrease potential difference, then the current is automatically decrease. सेम एज वेल इसका छोटा सा एग्जांपल हम अपना लाइफ, डेली लाइफ का देख सकते हैं कि जैसे हम नया नया शेल लगाते हैं रिमोट में, तो वो अच्छे से एक्टिव करता है, उसकी एनर्जी हाई होती है. सो इट मीन्स डायरेक्टली उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होता है. जब धीरे 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 जैसे उसकी एनर्जी कम होती जाती है, सेल्स हमारे लो होते जाते हैं, वैसे वैसे रिमोट की जो करंट फ्लोइंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे लो होती जाती है. सिंपल सेकेंड एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं कि जैसे हम नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ाते जाते हैं, वैसे ही डिवाइस का करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाता है. जैसे हम नंबर ऑफ़ शेल्स कम करते जाते हैं, वैसे ही उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है. सो वही चीज़ इसने अपनी एक्सपेरिमेंट में किया. ही टुक आई विल एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट. व्हाट इज़ द एक्सपेरिमेंट? ही टुक अ बल्ब, सम शेल, 4-5 शेल लिए उसने. एक करंट को मेज़र करने के लिए एमीटर लिया, एंड पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए उसने वोल्टमीटर लिया, और एक रेजिस्टेंस सो कॉल्ड उसने एक वायर लिया जिसमें से वो करंट फ्लो करवाएगा और जिससे हमें पता चलेगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने, हम मान के चलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसने 2 वोल्ट का एक बैटरी लगाया. तो उसने देखा कि हम मान लेते हैं कि उसमें से 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है, एमीटर से दिखा कि 5 एम्पियर करंट निकल रहा है जब हम 2 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं. देन ही ट्वाइस द बैटरी चार्जेस, ही अप्लाइड द 4 वोल्ट बैटरी इन द सर्किट. देन ही सो दैट एमीटर में करंट 10 एम्पियर हो गया है. मतलब करंट, जैसे ही हमने बैटरी का अमाउंट बढ़ाया वैसे ही करंट का अमाउंट भी इंक्रीज़ हो गया. फिर उसने 6 वोल्ट का बैटरी लगाया तो करंट हो गया 15 एम्पियर. सो इस, और अगर हम इसको वापस से फिर उसने कम करके देखा कि उसने फिर से 4 वोल्ट का बैटरी लगाया तो करंट हो गया 10 एम्पियर. तो फ्रॉम दिस experiment he mentioned that when we increase potential difference, then the current automatically increase, and if we decrease the potential difference, then the current also decreases. So from this experiment we find out a law which is known as Ohm's law, because it's given by the scientist Ohm's. So this is the according to this law,
potential difference is directly proportional to the current. First of all you have to know about this term directly proportional and inversely proportional, ये एक्चुअल में क्या होता है. तो मैं लिटरली यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये चीज़ें क्या होती हैं. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होती हैं, जब हम एक चीज़ को बढ़ाते हैं. व्हेन वी इंक्रीज वन थिंग देन अनदर थिंग automatically increase, and if we decrease then another one is also decreases. That is directly proportional. Okay, and inversely proportional का मतलब होता है when we increase one thing then the another thing will decrease, मतलब they will affect oppositely. एक को हम बढ़ाते हैं तो दूसरा कम हो जाता है, एक को हम घटाते हैं तो दूसरा बढ़ जाता है. ये वाला इफेक्ट कहलाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. यहाँ पे हमने क्या देखा है कि जब हम बैटरी बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ रहा है, जब घटा रहे हैं तो घट रहा है. मतलब जब सेम चीज़ ही फ्लो करती हैं, बढ़ाने पे बढ़ना घटाने पे घटना, तो हम उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और जब एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा घटता है और दूसरे को बढ़ाते हैं तो एक घटता है, तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. मैं यहाँ पे आपको मतलब पहले ही बता रही हूँ क्योंकि आगे हमारे यूज़ में आएगा. यहाँ पे सिर्फ हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से ही मतलब है. ठीक है. सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से, और करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से, I से. potential difference represented by V and current is represented by I. तो according to the Ohm's law statement क्या हो जाएगा हमारा, V is directly proportional to the I. अब आप पूछोगे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को कैसे लिखते हैं. जब हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखते हैं तो हम चीज़ को फ्रैक्शंस में लिखना शुरू कर देते हैं. मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे है नहीं, जैसे मैं अगर बोलती कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं. V प्रोपोर्शनल साइन यही रहेगा बट इट्स कम इनटू फ्रैक्शन 1/I. ओके, यहाँ पे ये है नहीं, मैं सिंबल बता रही हूँ कि कैसे लिखते हैं इस चीज़ को. सो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो इक्वल टर्म में लिखा जाता है, और अगर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो वो फ्रैक्शन में लिखा जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे इससे हमें मतलब नहीं है, हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि व्हाट इज़ ओम्स लॉ. ओम्स लॉ बहुत बार पूछा जाता है. देयर इज़ 90% चांसेस टू कम इन द एग्जाम्स. इसके 90% इधर इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है और इधर दिस स्टेटमेंट 1 and 2 मार्क्स का ये आता है. और ये सिंपली 2 लाइन्स में हम ये आराम से कैच कर सकते हैं मार्क्स. एक सिंपल सा लाइन हमें स्टेटमेंट इसमें लिखना होता है कि अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. दैट्स इट. ये एक सिंपल सा टर्म यहाँ पे मेंशन करना होता है, V प्रोपोर्शनल टू I. ठीक है. एंड व्हेन वी रिमूव दिस साइन, प्रोपोर्शनल साइन, जब हम इसको रिमूव करते हैं प्रोपोर्शनल साइन को, तो इसकी जगह जब इक्वल लिखते हैं तो हमेशा हमें एक कांस्टेंट यूज़ करना पड़ता है, एंड दैट कांस्टेंट इज R. R इज़ अ कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, इसको समटाइम्स वी कॉल रेजिस्टेंस, एंड इट्स अ कांस्टेंट. जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो जो भी टर्म्स हम यूज़ करते हैं उन सब टर्म्स को हम कांस्टेंट ही कहते हैं. ठीक है. तो दैट इज़ ओम्स लॉ. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन ओम्स लॉ या फिर व्हाट इज़ ओम्स लॉ, तो हमें सिंपल सा आंसर करना है. ओम्स लॉ स्टेट दैट potential difference is directly proportional to the current, V proportional I, and V is equals to I R. जहाँ पे R की वैल्यू, R का मतलब है कांस्टेंट और रेजिस्टेंस. दैट्स इट. दैट इज Ohm's law which describe the relationship between potential difference and current. ठीक है. अब यहाँ पे जो भी एक्सपेरिमेंट ओम ने किया था वो एक्सप्लेन नहीं किया गया है, वो मैंने आपको वर्बल यहाँ पे बता दिया था कि व्हाट इज़ एक्चुअली एक्सपेरिमेंट, उसमें इसने क्या किया था. लेकिन फिर भी समटाइम्स इसके जो भी इसने एक्सपेरिमेंट किया था उसका ग्राफ और उसका जो सर्किट डायग्राम है वो एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है. तो मैंने यहाँ पे नोट्स में आपके लिए वो डायग्राम और वो ग्राफ मेंशन किया है. तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बनाया है VI ग्राफ. इसको VI ग्राफ भी बोलते हैं और ओम्स ग्राफ भी बोलते हैं, दोनों इसको नाम दिए गए हैं. VI ग्राफ भी बोलते हैं इसको और ओम्स ग्राफ भी बोलते हैं. अब इसमें किस तरीके से मैंने ये ग्राफ बनाया है, इट इज़ सो मच ईजी. यहाँ देखना, सबसे पहले X एक्सिस एंड Y एक्सिस हमें बनानी है. जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो ये दो टर्म्स हमको बनानी पड़ती हैं. दैट इज़ X एक्सिस एंड
दैट वन इज़ वाई एक्सेस, ठीक है। एक पे जो एक्स एक्सिस है इस पे हमने लिया है करंट एंड सेकंड पे हमने लिया है इधर पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपली आपको ये वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो, क्योंकि प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी होता है तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। और अगर आप एक एक्सपेरिमेंटल बेस पे जब आप बनाते हो और आप ये वैल्यूज़ लेते हो तो आप इनको लिख भी सकते हो, देयर इज़ नो इशू अबाउट दिस, ठीक है। दिस इज़ द VI graph and as well as Ohm's graph. Sometimes these questions arise in exam that draw VI graph and draw the Ohm's graph. So it's a simple diagram which can give you easily you can earn marks from this. And the circuit of Ohm's experiment, this is the circuit which I mentioned here. In this circuit I told you that what he did, he took some things like resistance wire, यहाँ पे इसने लिया हुआ है, ammeter for measuring current, voltmeter for measuring पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दिस इज़ द बैटरी। मतलब यहाँ पे ये इस तरीके से इसलिए लगाया गया है ताकि कि मैं बता सकूँ कि पहले उसने 1 लगाया, फिर उसने 2 लगाया, फिर उसने 3 लगाया, ताकि करंट को मेज़र किया जा सके। वेरिएबल बैटरी भी हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे। अब जो चीज़ें मैंने आपको पहले भी मेंशन की थी कि सर्किट डायग्राम बनाते टाइम हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, दैट इज़ अमीटर जो भी है वो हमेशा सीरीज़ में लगता है। सीरीज़ में मतलब जैसे बैटरी के सीरीज़ में, तो ये बैटरी की सीरीज़ में लगा हुआ है। सीरीज़ का मतलब मैंने बताया था 1 बाय 1 के बाद 1, 1 के बाद 1। एंड पैरेलल का मतलब होता है जितनी भी चीज़ें हैं उन सबका एक पॉइंट, दोनों पॉइंट 2 ही पॉइंट्स के बीच में होंगे। जैसे यहाँ पे हम इन दोनों का देख रहे हैं कि ये हमेशा इसके वोल्टमीटर हमेशा इसके पैरेलल में असाइन किया गया है। नेक्स्ट हम और भी आगे सॉल्व करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा, दैट इज़ सो मच ईजी, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। So these are two diagrams. First is VI graph and second is electric circuit for Ohm's law. ठीक है, these are two diagrams. Sometimes it will be maybe पूछ लिए जाते हैं, so you have to know about this. नेक्स्ट हम आगे चलते हैं इसमें। अब यहाँ पे जब हमने ओम्स लॉ सॉल्व किया तो हमने देखा कि हमारे पास में एक कांस्टेंट आया, दैट इज़ रेजिस्टेंस भी हमने बोला। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बन जाती है। रेजिस्टेंस होता क्या है? किसी भी वायर में, किसी भी सर्किट में एक ऐसे ऑब्स्टेंस होता है जो कि करंट को रोकने की कोशिश करता है। जैसे हम सर्किट जब बनाते हैं तो बहुत सारे ऐसे जगहों पे चीज़ें लगाते हैं जिससे कि हम करंट को कंट्रोल कर सकें, कम या ज़्यादा करके। दोज ऑब्स्टेकल्स नोन एज रेजिस्टेंस। कुछ चीज़ों में, कुछ मेटल्स में ये प्री डिफाइंड होता है, पहले से होता है, और कहीं जगह हम इनको अप्लाई भी कर सकते हैं अपनी चॉइस से। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। सो रेजिस्टेंस इज़ द ऑब्स्टेकल अगेंस्ट ऑब्स्टेकल, और वी कैन सी दैट अ थिंग जो कि चार्जेस के अगेंस्ट आता है। मतलब करंट को रोकने के लिए जो चीज़ हम अप्लाई करते हैं, डिवाइस हम अप्लाई करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, हमने अभी फॉर्मूला निकाला था V=I/R। ओके, तो यहाँ से R का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? R=V/I। दैट्स इट। अब रेजिस्टेंस के बारे में ओम ने बताया था, तो इसकी यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो ओम ही है। ओम इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और इसका एक छोटा सा ऐसे सिंबल होता है जो यूज़ में लिया जाता है। सिंपल एज दैट। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब इसमें ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, जो मैंने आपको भी बता दिया। अब रेजिस्टेंस जो है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि रेजिस्टेंस एक वो ऑब्स्टेकल होता है जो कि करंट को रोकने में हमारी हेल्प करता है, या फिर समटाइम्स वी कैन से दैट कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ओपोज करने में जो सब्सटेंस होता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। सो यहाँ पे अब रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है? जैसे हम सर्किट की या फिर वायर की या फिर जिन भी चीज़ों में से कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और जो भी चीज़ें जिनमें से करंट फ्लो करता है, उनमें रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, जो ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो 3 चीज़ों पे डिपेंड किस तरीके से करता है? एक, जिस भी वायर में से करंट फ्लो कर रहा है वो कितना, उसकी लेंथ कितनी है, मतलब द लेंथ ऑफ द वायर। सेकंड, वो वायर कितना मोटा है, कितना मोटा इन द सेंस उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है।
ठीक है। एंड थर्ड इज टेम्परेचर। टेम्परेचर वाला पॉइंट हम थोड़ा सा नॉन वनरेबल कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इट सिम्स फ्लैक्चुएटेड, ये कभी बढ़ता है कभी कम होता है, तो ये हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टेंस जो है वो एक तो लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है और सेकेंड क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया पे डिपेंड करता है वायर के। तो हम यहाँ पे डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। अब यहाँ से एक चीज़, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो मैंने आपको अभी भी बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी, अगर एक डिक्रीज़ होगी तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। मतलब जितना लंबा आपका वायर होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, जितना छोटा वायर होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। इसको हमने टर्म्स में लिख दिया, रेजिस्टेंस को हम आर से लिखते हैं, लेंथ ऑफ वायर को यहाँ पे एल से लिखा गया है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यहाँ पे साइन बनाया गया है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तब वो इक्वल्स में लिखा जाता है, जो कि मैंने अभी आपको थोड़े देर पहले ही बताया। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, आई मैंशनड इट। नाउ सेकेंड मैंने बताया था क्रॉस सेक्शन एरिया पे। सेकेंड, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। सिंपल, इसको हम टर्म्स में इसने लिखा है, रेजिस्टेंस को हम आर से ही लिखते हैं और एरिया को लिखा गया है ए से। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो इक्वल में लिखा जाता है, और जब इन्वर्सली होता है तो फ्रैक्शन में लिखा जाता है। तो इसको हमने कैसे लिखा है, 1/A। दिस इज द इक्वेशन 2। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, इक्वेशन फर्स्ट और 2 को, तो सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला बन गया हमारा R प्रोपोर्शनल L/A। इसका मतलब ऊपर वाले के तो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नीचे वाले के क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर हम R बढ़ा रहे हैं तो L भी बढ़ेगा, आर घटा रहे हैं तो एल भी डिक्रीज़ हो जाएगा, और अगर हम आर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एक ही टर्म्स में एरिया डिक्रीज़ हो जाएगा। आर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ए डिक्रीज़ होगा, और इसको डिक्रीज़ कर रहे हैं आर को तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब वही चीज़ अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब भी ये प्रोपोर्शनल का साइन हम यूज़ करते हैं तो इसको हमें हटाना होता है, इक्वल के टर्म में लाना होता है। एंड व्हेन वी टेक इट इनटू इक्वल फॉर्म देन देयर शुड बी यूज़ अ कांस्टेंट। जहाँ पे पीछे हमने बोला था आर इज़ अ कांस्टेंट, और यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज़ किया गया दैट इज़ रो। इस सिंबल को रो कहा जाता है। ठीक है, रो एंड सो कॉल्ड, इसी को ही रेजिस्टिविटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। तो रेजिस्टेंस का यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला डराइव हो गया, दैट इज R इज इक्वल्स टू ρL/A। रो इज अ रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, L इज लेंथ ऑफ वायर, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ से हम रो का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। अगर हम रो का फॉर्मूला यहाँ पे डराइव करते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा RA/L। A इधर चला गया ऊपर, L आ गया नीचे, तो ये फॉर्मूला बन गया रेजिस्टिविटी का। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है और ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट, अब रेजिस्टिविटी की यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट तो हमें पता है क्या थी, ओम। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी वो हम ड्राइव कर लेते हैं यहाँ से। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, ओम। एरिया हम हमेशा किस में लेते हैं, मीटर स्क्वायर में, और लेंथ हमेशा किस में लेते हैं, मीटर में। तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर। सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे मैंने आगे बता दिया, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज यहाँ पे रेजिस्टिविटी आएगा, रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ये दैट इज रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। अब रेजिस्टिविटी यहाँ पे डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। हमने ये बोला रेजिस्टेंस तो लेंथ और वायर पे डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी इज जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस, इट डजंट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ वायर एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, इट इज़ फिक्स्ड, ऑलरेडी फिक्स्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे इसमें।
रेजिस्टेंस डिपेंड, थर्ड पॉइंट, रेजिस्टेंस हमने बात किया था कि रेजिस्टेंस 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है. इट्स लेंथ ऑफ वायर विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेकेंड इज क्रॉस सेक्शन एरिया विच इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड थर्ड इज temperature. Sometimes when we increase the temperature then resistance increases, sometimes when we decrease the temperature then it's also increasing, and sometimes no more changes. So it depends on the metal which we use actually. तो यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ. फर्स्ट पॉइंट इज रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन सम मेटल्स. कुछ मेटल्स में इट इज़ इंक्रीज वाइल टेम्परेचर इंक्रीज. कुछ मेटल्स में क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये 3 मेटल ऐसी हैं. इनमें जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वैसे ही रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो रेजिस्टेंस भी घट जाता है. सेकेंड इन्होंने बोला है कि कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनमें चाहे आप टेम्परेचर को कितना ही बढ़ा लो कितना ही घटा लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. दे शो नेग्लिजिबल चेंज, एंड दीज जो भी ये सब्सटेंस होते हैं वो मोस्टली अलॉयज़ होते हैं. अलॉयज़ का आपको पता होगा, इट्स अ कॉम्बिनेशंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स. अगर आपने 8th-9th में पहले से पढ़ा है तो अलॉयज़, मेटल्स और इन सब की प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी होंगी पहले से ही. सो अलॉयज़ वो होते हैं जो जिनके ऊपर टेम्परेचर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेस तो भी उनका रेजिस्टेंस कम नहीं होता, अगर कम हो रहा है तो भी टेम्परेचर कम होता है तो भी उनके रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दे विल शो नेग्लिजिबल चेंज इन रेजिस्टेंस. ठीक है. एंड थर्ड इज सम मेटल्स डिक्रीजेज रेजिस्टेंस व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज. जैसे हमने गोल्ड, सिल्वर की बात की, उनमें टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा था. बट कुछ मेटल्स ऐसी होती है जिसमें टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर मेटल्स होती हैं. ये मतलब इनमें से टेम्परेचर जब बढ़ता है तब तो करंट फ्लो करता है, रादर देन इनमें से करंट फ्लो नहीं करता है. सम प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी कि इसमें 5 बॉन्ड होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जब टेम्परेचर हाई जाता है तो एक बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, एंड देन इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टेड टू फ्लो. सो दीज, ये आपको पता होगा कि सेमीकंडक्टर, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स कैसे वर्क करते हैं. नेक्स्ट इसमें लास्ट इन्होंने बोला है कि कुछ मेटल्स ऐसे होती हैं जिनका टेम्परेचर एक फिक्स पॉइंट पे जाने पे उनका रेजिस्टेंस जो है वो 0 हो जाता है. फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी को जब हम 42 डिग्री केल्विन तक गर्म करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो 0 पहुँच जाता है. दिस इज़ द डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर एक्चुअली, कि कुछ में बढ़ता है और कुछ में कम होता है. इफ़ वी टॉक अबाउट रेजिस्टिविटी तो ऑल मेटल्स हैव फिक्स्ड रेजिस्टिविटी. सब मेटल्स की रेजिस्टिविटी फिक्स है, मतलब वो वायर की लेंथ पे और वायर की के क्रॉस सेक्शन एरिया पे उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. वो पहले से प्री डिफाइंड है. आपके सिलेबस में एक टेबल बनी हुई है जिसमें मोस्ट ऑफ जो मेटल्स आपके यूज़ में आती हैं उन सब की रेजिस्टिविटी आपको गिवन है. याद करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछा जाता कभी भी, बट समटाइम्स इन एग्जाम्पल्स ये पूछ लिया जाता है. सो डोंट वरी, आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है, वो आपको वहाँ पे वैल्यू गिवन होगी उस चीज़ के. बट फॉर दिस टेबल इज़ यूज़फुल लाइक इन दैट वे दैट वी कैन सी दैट कि कौन सी मेटल्स अच्छी हैं जिसमें से करंट ईजीली फ्लो करता है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें से करंट फ्लो नहीं करता है. अब लास्ट में यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्क्राइब किया है, जैसे यूनिट ओम क्या होता है. यूनिट ओम जो हमने लास्ट में 1 वोल्ट की बात की थी कि 1 पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 1 एम्पियर करंट क्या है, तो मैंने आपको इजीली कंसेप्ट बताया था कि जब भी हम यूनिट किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो उसके फॉर्मूले में जो भी चीज़ें हैं उन सबको हम 1 के इक्वल रख देंगे, तभी आपका आंसर क्या आएगा, 1 के इक्वल. तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने यहाँ पे क्या निकाला था, R = VI. अब 1 ओम यहाँ पे कब होगा, यहाँ पे 1 ओम कब होगा, जब 1 वोल्ट की बैटरी लगेगी और उस सर्किट में से 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा. दैट्स इट. तो इसको हम लैंग्वेज में लिख देते हैं कि व्हाट इज़ 1 ओम, व्हाट इज़ 1 यूनिट ओम. If the current is 1 ampere through a conductor produces potential difference 1 volt between 2 points, then the resistance is called 1 ohm. Simple. कि 1 ohm resistance कब होगा, जब किसी सर्किट में 1 वोल्ट की बैटरी लगी है जो कि 1 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस कर रही है. ठीक है. नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट ओम मीटर होती है जो मैंने बता दिया, बट इसकी स्पेसिफिक एक डेफिनेशन है जो समटाइम्स पूछ ली जाती है. सो डेफिनेशन इज रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर
यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। बेसिकली आप इसको लिख सकते हो कि रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस विच हेल्प टू ओपोज द करंट इन अ सर्किट। दैट्स इट। इसका फॉर्मूला आपको बताया था अभी, रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, और यूनिट के बारे में हमने पहले बात कर ली थी कि इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। दैट्स इट। थैंक यू।